हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर सुशील कोटरू जी से, जो कि डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं। उनको अगर एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो काफ़ी हद तक उनकी समस्या जो है उसको दूर किया जा सकता है। और डॉक्टर सुशील कोटरू जी एक बेहद अच्छे डॉक्टर हैं जो डायबिटीज़ के बारे में बहुत गहन तरीके से लोगों को बताते हैं और उनका इलाज करते हैं। दर्शकों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪੈਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਲਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਲਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੈਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੁਰੋ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦਾ ਵੀ ਉਂਗਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਜੀ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਈ 3-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ आंदे ਨੂੰ। क्या हुआ, थोड़ा सा इंजेक्शन ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो कंफ्यूजन में हो गए थे कि डर होता है कि ज़्यादा सही नहीं हो रहा है, इसलिए नेचुरोपैथी की आ रही थी ऐड। वहाँ पर देखा कि कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा कि हम शुगर को हटा देंगे। वहाँ पर 1.5 महीने के करीब उनका ट्रीटमेंट चला और धीरे धीरे आप अपनी देसी दवाइयों के हिसाब से कम करते गए शुगर। उन्होंने बिल्कुल ही टीका मतलब कि बंद कर दिया और चेक करना हट गए और शुगर उनका बढ़ नहीं रहा था, इसलिए उनको ज़्यादा मतलब कि परेशानी होने लगी। उनको उनकी दवाइयों ने कुछ काम नहीं किया और वो कोमा में चले गए और ICU में। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫ੍ਰੀ, ਅੱਜ ਹਮ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਚ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੀਨਾ।
तो मैं थे एज अ डाइटिशियन एंड डायबिटीज एजुकेटर वजोਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। तो ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। तो डायबिटीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਟਾਈਪ 1 ਐਂਡ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। तो टाइप 2 डायबिटीज है जिਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, बट मेडिसिन से नाल डाइट ਨੂੰ मैच करना बहुत जरूरी है क्योंकि अलग-अलग तरह ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अगर आप खान पीन समय ਤੇ नहीं रखांगे या खान पीन ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸਟੇਬਲ नहीं रह ਸਕਦੀਆਂ, फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेंगी या तो शुगर एकदम डाउन हो जाएगी अगर खान पीन का गैप आएगा, अदरवाइज शुगर एकदम हाई चली जाएगी अगर आप खाना ज़्यादा खावांगे, ओवर ईटिंग अगर ज़्यादा होएगी। तो जिस करके ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਮੀਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਵॉइड करनी चाहिए, फास्टिंग एंड फीस्टिंग, मतलब एक टाइम पेट भर के ना खाओ और ज्यादा देर भुखे ना रहो क्योंकि इंसुलिन थोड़ा प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अगर तुसी पेट भर के इको बारी खाओगे तो थोड़ा शुगर लेवल एकदम ही हाई चला जाएगा और अगर खान पीन का ज्यादा गैप हो जाएगा, दवाइयां तुसी खा चुके हो, इंसुलिन तुसी ले चुके हो तो थोड़ी दवाइयां या इंसुलिन नु नहीं पता कि तुसी खाना समय ते नहीं खाता तो शुगर डाउन होने का रिस्क होता है। तो समय ते खाना खाना, फिक्स फूड फर्स्ट एंड फिक्स टाइम फर्स्ट, है ना, एक चीज़ा करनी जरूरी है ताकि थोड़ी मेडिसिन दे नाल अगर खाना पीना मैच करोगे ताकि शुगर स्टेबल हो पाएगी। जैसे आज हमने पेशेंट्स के साथ बात की, जैसे डायबिटिक फुट वालों पेशेंट्स के बात की, इंसुलिन के बारे में बात करी और जिस तरीके से आपने उस लड़की को जो 25 इयर्स की लड़की थी जो 10 साल से इंसुलिन ले रही थी और बीच में इंसुलिन छूटने के साथ जो उसको लामत आई, उन सभी के साथ हम रूबरू हुए आज आकर। क्या कहना चाहेंगे कि डायबिटिक फुट और शुगर, अगर जब हम शुगर की बात करें तो शुगर कैसे कैसे जो है इफेक्ट करना शुरू कर देती है, और जैसे हम आज पेशेंट्स को मिलकर हमें लगा कि पहले तो ये साइलेंट किलर की तरह धीरे धीरे लगती है लेकिन बाद में ये बहुत तेजी से अपना काम करना शुरू कर देती है। तो पहले तो हमारे सेंटर में जो हमारा एंडोक्राइन डायबिटीज सेंटर है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक संपूर्ण शुगर का सेंटर है जिसको हम 360 डिग्री डायबिटीज केयर बोलते हैं, कि जिसमें हम डायबिटीज का संपूर्ण केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। तो उसमें क्या, पहले तो हम काम करते हैं प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज पे, कि डायबिटीज की बीमारी से कैसे रोका जा सकता है। तो अगर डायबिटीज हो गया तो फिर डायबिटीज से होने वाली जटिलताओं, कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचना है। तो जब हम आज सब लोग जानते हैं कि शुगर की बीमारी को अगर हम ढंग से कंट्रोल नहीं करते तो इससे हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है, अदर पैरालिसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और पैरों की कॉम्प्लिकेशन, पैर कटने की नौबत भी आ सकती है। अलग अलग तरीके का शुगर है, जैसे आप अलग अलग पेशेंट से आज मिले हैं, उसमें टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों का शुगर है, आजकल लेट एज में भी हो सकता है, जिनमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, जिनमें इंसुलिन ही बनता, बिना इंसुलिन के नहीं चल सकता उनमें। अगर वो इंसुलिन बंद करते हैं उनको लाइफ डेंजरस सिचुएशन पैदा हो सकती है। जैसे आज वो पेशेंट से आप रूबरू हुए हैं, उनके अटेंडेंट से, पेशेंट एडमिट है तो इंसुलिन बंद करने से उनकी एक सीरियस सिचुएशन हुई है जो आईसीयू में एडमिट है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जिसको पहले बोलते थे, या टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, या आजकल लाडा भी कुछ पेशेंट्स में होता है जो लेट एज में टाइप 1 डायबिटीज है, उनको इंसुलिन लगाने की जरूरत है, बिना इंसुलिन उनकी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इंसुलिन बंद नहीं करना चाहिए, तो उनको इंसुलिन की जरूरत है। टाइप 2 डायबिटीज में दवाएं काम करती हैं बट उनमें भी कभी कभी इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरे कहने का मकसद है कि डायबिटीज में पहले ऐसे काम करना चाहिए जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, जिनको वेट की वजह से, फैट की वजह से डायबिटीज है, अगर वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी में तब्दीली करें, अपना खान पीन पे ध्यान रखें, वेट को बढ़ने ना दें, मानसिक तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करें, तो अपने डायबिटीज को या तो डिले कर सकते हैं, डायबिटीज होने से या रोक सकते हैं। तो पहले प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए। बट अगर आपको डायबिटीज है, अगर टाइप 1 है आप इंसुलिन का इस्तेमाल करेंगे, अगर टाइप 2 है आप परहेज करेंगे, सैर करेंगे, प्रॉपर दवाई लेंगे और शुगर को कंट्रोल करेंगे तो इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। पर अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है, वो पैर रिलेटेड है, किडनी रिलेटेड है, हार्ट रिलेटेड है, आइज रिलेटेड है, तो उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए कि इससे पहले ये हमारी लाइफ को खतरा बन सकती है। तो ये 3 चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक संपूर्ण डायबिटीज केयर का मतलब ही होता है कि वो प्रिवेंशन पे काम करें, शुगर के कंट्रोल पे काम करें, अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई हैं तो उनका भी इलाज साथ में हो। बट हम चाहेंगे कि इनकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो ये तभी पॉसिबल है अगर लोगों को इसके बारे में जागरूकता, जानकारी, नॉलेज है और इस पे हम काम करें, जिसमें हमारी पूरी टीम है,
मेरी जो कलीग है उन्होंने डाइटिशियन नीरज शर्मा और एजुकेटर भी हैं वो बता दिया इसके बारे में। और यही इसी में आपका भी साथ हमें मिला है, जो लोगों को रूबरू करा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि इस बीमारी के बारे में कि वो अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और इस बीमारी से हम जो लड़ाई है, हमारी जो फाइट है, उसके साथ हम सारे पेशेंट, सारे लोगों के साथ हैं। यू आर एन क्रिएटिव पर्सन, और पहले तो आपने ये एक एक्सक्लूसिव जो है सेंटर खोला है शुगर के लिए, और इसके साथ साथ जैसे आज हम देख रहे हैं थायराइड का एपिडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आजकल सेक्स की प्रॉब्लम्स जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनको बहुत बढ़ रही हैं, और जो है अलामतें हैं शुगर के साथ होने लिए, उसके लिए भी आप कुछ स्पेशल क्लिनिक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा शुगर का सेंटर होने के साथ साथ ये हार्मोन्स का सेंटर है। तो बहुत सारी ऐसी हार्मोन्स की बीमारियां हैं जो आम लोगों की इसके बारे में जानकारी नहीं है, और हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स जो हैं, जो थायराइड के जो आपने कहा एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में आ रहा है, बहुत कॉमन डिसऑर्डर है थायराइड डिसऑर्डर्स। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ऐसे थायराइड की प्रॉब्लम साथ में हो सकती है, और थायराइड पेशेंट्स को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम साथ में हो सकती है। तो ये दोनों कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स हो सकती है, और वैसे भी थायराइड आम बीमारी आजकल देखा गया है, बहुत ज़्यादा राइज है इसका इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। तो थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए हमने अलग से स्पेशलिटी क्लिनिक स्टार्ट किया है कि अलग से डे रखा है जहाँ थायराइड पेशेंट्स को देखा जाए। इनको भी अलग से टाइम देने की जरूरत है, थायराइड प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉपर इलाज क्या है। इसके साथ साथ आपको बताया पंजाब नंबर 1 स्टैंड करता है ओबेसिटी में, मोटापे में, और पेट वाला जो मोटापा है, जो लिवर की चर्बी है, वही बीमारी होती है। हमारे हाथ पैरों में इतनी फैट नहीं है, बॉडी में बहुत फैट नहीं है, लेकिन पेट के ऊपर फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो ओबेसिटी पे भी हम काम करते हैं। तो हमने मंडे टू फ्राइडे अलग अलग डे एट्रीब्यूट किया है, जिसमें हम स्पेशलिटी क्लिनिक्स रन करते हैं। थायराइड पेशेंट्स के लिए थायराइड क्लिनिक रन करते हैं, और मोटापे के लिए ओबेसिटी क्लिनिक, जिसमें इनको अलग से टाइम देना पड़ता है। इनका रोजमर्रा की जिंदगी में इनका डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकल ट्रीटमेंट तो बात की बात है, पहली 2 पौड़ियां तो डाइट एंड एक्सरसाइज, और इनको जागरूक करना है इस बीमारी के बारे में, क्योंकि मोटापा एक बड़ी बीमारी है, इससे 100 हजारों बीमारियां और हो सकती है। कि आजकल शुगर की बीमारी के इलाज में कुछ नई नई तकनीका, नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जो सब लोगों को नॉलेज में होनी चाहिए, और आपके जरिए ये सब लोगों को मैं करना चाहूँगा, इन्फॉर्म करना चाहूँगा। तो नई टेक्नोलॉजीज में आजकल जो इंसुलिन जिनको बार बार लगाना पड़ता है, तो पहले तो सिरिंज से लगाया जाता था, आजकल पेन्स आते हैं, वो पेनलेस हैं, बिना दर्द के इंसुलिन हैं। जो पेन आता है वो कैरी भी कर सकते हैं, उसमें फ्रिज की जरूरत है, हर समय बर्फ की जरूरत नहीं है कैरी करने के लिए। अब उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी इंसुलिन पंप है, ऐसे बहुत टाइम से, लेकिन हमारे एरिया में कम यूज किया जाता था। तो इंसुलिन पंप एक स्मार्टफोन की तरह है, इसको प्रेस करने से इंसुलिन कंटिन्यूसली आप लगा सकते हैं। तो आप अपना, जैसे टाइप 1 बच्चों का शुगर है, कुछ भी खाना चाहेंगे, आइसक्रीम खाना चाहेंगे, पिज्जा खाना चाहेंगे, उसका कैलकुलेशन करके इंसुलिन लगाया जा सकता है। अब बच्चे, अगर पेरेंट्स को ये टेंशन रहता है कि बच्चे को इंसुलिन लग रहा है, बच्चा छोटा है, स्कूल में है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल का है, बच्चे को समझ नहीं आएगा अगर शुगर कम हो गया तो हम बच्चे का क्या करेंगे। तो बच्चे को आजकल हम सेंसर लगा लेते हैं, वो आर्म पे लगाया जाता है छोटा सा सेंसर। बच्चे का अगर शुगर कम ज्यादा हो जाए तो वो शुगर रीडिंग्स, पेरेंट्स की अगर स्मार्टफोन है उसकी रीडिंग्स 5 पर्सन की, अगर डॉक्टर जो ट्रीट करा उसके फोन पे भी आ सकता है। तो बच्चे का अगर शुगर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, जो हमने टारगेट सेट किया, मान लो हमने 80 to 140 टारगेट सेट किया है, अगर 80 से शुगर कम हो रहा है, 140 से बढ़ रहा है, तो पेरेंट्स के स्मार्टफोन पे एक तो शुगर रीडिंग्स डायरेक्टली आ रही हैं, और अलार्म में बीप साउंड आ जाएगी कि बच्चे का शुगर कम या ज्यादा हो रहा है। वो कंसर्न स्कूल में या जहाँ भी बच्चा है कहीं खेल रहा है, तो उनके वो इमीडिएटली इंटरवीन कर सकते हैं, या कंसर्न पर्सन को फोन करके बता सकते हैं कि बच्चे का शुगर कम या ज्यादा हो रहा है, तो वो हेल्प कर सकते हैं बच्चे को। तो उनको जो स्ट्रेस रहता था, तनाव रहता था बच्चे का, कैसे होगा, क्या होगा, तो उसमें टेक केयर कर सकते हैं। इस नई तकनीक को हम जो बोलते हैं CGMS, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है, 5 मिनट में शुगर चेक होता है, और ये मेडिट्रॉनिक्स का डिवाइस है। तो बहुत सारी नई तकनीकें आई हैं, और जिन पेशेंट्स का वेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता, और बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें बेरियाट्रिक सर्जरी, ऑलरेडी आप जानते हैं इस बारे में, आपने पहले भी एक बार हमारे साथ एक डिस्कशन हुआ है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी भी हमारे डिपार्टमेंट में होती है, और इसके साथ बहुत सारे डायबिटिक फुट पेशेंट्स में पैर काले होते हैं, नाड़ियाँ ब्लॉक होती है, तो उसके लिए हमारे पास वेस्कुलर सर्जन भी हैं हमारे डिपार्टमेंट में। जो नाड़ियों में अगर ब्लॉकेज आई है
तो उसके लिए अगर बाईपास सर्जरी करनी है, टांगों की नाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, ये नाड़ियों में कोई खून की गंढ बन गई है, नाड़ियाँ ब्लॉक हो गई है, तो उसमें स्टेंट पाने की जरूरत पड़ती है। तो एक टीम है 360 डिग्री डायबिटीज केयर, डायबिटीज के साथ होने वाली सारी जटिलताओं का जो भी हेल्प चाहिए में, जो सपोर्ट चाहिए, उसके लिए पूरी टीम है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको हम बोलेंगे संपूर्ण 360 डिग्री डायबिटीज केयर के लिए ये हमने सेंटर स्टार्ट किया है और कोशिश कर रहे हैं और आगे और कोशिश होती रहेगी कि हम एफोर्डेबल भी रहें, क्योंकि हमें पता बहुत सारी जनता और पोस्ट कोविड पैंडेमिक और लॉकडाउन के बाद लोगों की इनकम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। कोशिश कर रहे हैं और कुछ बच्चों को हम फ्री इंसुलिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो गरीब पेशेंट्स को फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, हम हर समय कोशिश रहेगी हमारी कि जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते एफोर्डेबल भी रहें, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी रहें और स्टैंडर्ड ऑफ केयर भी रहें और बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट भी रहें। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, उसमें आपका साथ भी हर समय हमारा रहे लोगों को जागरूक करने में। लास्ट लाइन में यही करूंगा, जिन पेशेंट को सबसे ज्यादा जानकारी नॉलेज है डायबिटीज के बारे में और अमल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा बढ़िया रहती है, उनका कंट्रोल बेटर रहता है, उनका फ्यूचर ज्यादा बेटर रहता है। तो ये उसमें आपका रोल ज्यादा भी रहेगा हमारे साथ साथ जो लोगों को जागरूक करते हैं। थैंक यू जी।